Hello students, welcome back to the channel and I'm really happy that you are staying tuned and learning about our next topic of class 10th physics. So let's see what we are going to learn today. Okay, wait, are you not able to see what's there on the screen? Let me switch on the lights. I hope now you are able to see it. So our topic for today will be electricity. Can you imagine your life? Or not even life, can you imagine your 1 hour of a day without electricity? अगर लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी कर पाओगे? आपका डेली बेसिस पे फ्रॉम मॉर्निंग टिल द नाइट यू आर स्लीपिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिसिटी. So that is why today we'll be learning about our next module, that is our class 10th chapter, that is electricity. Let us see what all things in the daily basis we use by using the electricity. Electricity से हम खाना कुक करने के लिए oven use करते हैं, whether it is coffee maker, it is fridge, it is TV. When you go to school, you learn everything. You cannot imagine not having light or fans or AC or cooler in your summer season. And similarly, you cannot imagine your life in winter season without an electric heater. That means it is a very important topic and we need to learn it in detail. So first of all, a question arises is what is electricity? हम क्या करने वाले हैं इस मॉड्यूल में, हम बेसिक डेफिनेशंस लेने वाले हैं और उस डेफिनेशंस में जो वर्ड्स हमको नहीं समझ में आ रहा है उस वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में. एंड सो इन दैट वे आवर क्यूरियोसिटी विल बी removed and we'll be able to learn in a better manner. So what is electricity? In simple words, electricity is a form of energy. जैसे heat, light एक form of energy होता है, वैसे electricity भी एक form of energy है. But ये किस टाइप का form है? ये हमारा एक secondary source of energy होता है. That means हमारे पास कुछ primary sources होते हैं जैसे coal, petroleum, जिसको हम अर्थ से डिग करके निकालते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एंड दैट वी आर यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ. It is but obvious we cannot use our coal, we cannot burn the coal every day in our home to get light or to get heat. So it has to be converted properly in a correct form so that it can be used for variety of uses. Okay, so this is basically electricity. तो हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक. For right now we need to learn only about dynamic electricity. Dynamic का मतलब होता है जो चीज़ मूव करते रहती है. तो when we have to deal about moving electric charges, so that is known as our dynamic electricity. अब इस टर्म के डेफिनेशन में we have come across 3 words: moving electric charges. Moving का मतलब तो पता ही होगा आपको, but what are electric charges? So let us learn what are electric charges. Basically there are 2 types of electric charge carriers, that is positive and negative. अब फिजिक्स से थोड़ा हटके हम केमिस्ट्री में जाते हैं. You may have learned about atoms. The given image is the image of an atom. इस एटम में जो सेंटर है वो हमारा न्यूक्लियस है और जो सराउंडिंग में है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली एटम लुक्स लाइक. हमारे लाइफ में जितने भी मैटर है, जो भी सब्सटेंसेस है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एटम्स. So we are just going to learn about one single atom. हम अभी सिर्फ एक सिंगल एटम के बारे में पढ़ रहे हैं. एक सिंगल एटम में in the center point we are having nucleus. That nucleus consists of protons and neutrons और electrons इसमें revolve करते रहता है. Here the red balls are given by neutrons, blue one by protons and the electrons are revolving around it. So basically अगर हम इससे जो हम ऑलरेडी जो चीज़ें हमको पता है क्लास 8 और 9 में हम पढ़े हुए हैं उस चीज़ को अगर रिलेट करते हैं तो वी बेसिकली नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स. एक एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दैट इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज द चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वो अपने अंदर चार्ज को कैरी करके ले जाता है. ओके, पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन. सो ये कंप्लीट हमारा एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व अराउंड करता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, how can we define it?
ओके, नाउ लेट्स सी, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो दिस यू नीड टू मेमोराइज कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, सो वी हैव अ नेगेटिव साइन, दैट इज 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. You need to memorize it. Coulomb is the SI unit of charge. अब एक चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमको अगर एक आलू खरीदना है. ओके, सो एक आलू अगर मेरे को 2 चाहिए तो आई विल आस्क फॉर 2. इफ आई वांट 3 देन आई विल आस्क फॉर 3. दैट मीन्स आई विल गिव अ स्पेसिफिक नंबर. सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ कि आपके पास चार्ज कितना है, तो हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा उसमें चार्ज होगा. दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हमारा -1.602 into 10 to the power 19 कूलम है, तो अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 5. Like I'm having here 1 electron. So 1 electron is having charge of 1.602 into 10 to the power 19 coulomb. I have again brought a second electron with the same charge because electron's charge is constant. This is the simplest mass. Next, अगर मैं एक और लेके आती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 3 electrons है. So total what will be the charge of that object? The charge will be 3 into charge of 1 electron. तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहाँ पे N क्या बताता है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E हमारा बताता है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कम फ्रॉम दिस साइड, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इट इन डिटेल. आई होप कि ये फॉर्मूला अब आप भूलेंगे नहीं. ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q with the SI unit coulomb, and its formula is Q equals to N into E, where N is number of electrons and E is charge in 1 electron. अब अभी तक की स्टडी में हमको ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे समझा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे समझा सकते हैं. इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ हाउ दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस. हम अभी तक तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, बट कैसे होता है ये? तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम स्टडी करते हैं, एक सिंगल वायर को लेते हैं. एक सिंगल वायर दैट इज अ कंडक्टर. कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना अलाउ करता है अपने अंदर इजीली. तो उस वायर को हम एकदम मैग्नीफाई करके इसको जूम में देख रहे हैं. एक वायर के पास मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. यहाँ पे हमारे पास 5 एटम्स ही दिख रहे हैं. एटम्स के सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन्स वी आर शोइंग हियर, एंड उसके सर्कुलर में, उसके सर्कमफेरेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करने की कोशिश करता है. अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर होता तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते. ओके, सो सिंपली हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. अब हमने ये भी देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस कैरियर्स आर नोन एज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर मैं ये क्यों बोल रही हूँ हमेशा कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन? व्हाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स? प्रोटॉन भी तो फ्लो कर सकता है, बट देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट. प्रोटॉन्स फ्लो इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में होता है, और देयर इज अ सेकेंड रीजन ऑल्सो. प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है. तो ऑब्वियसली जो ज्यादा भारी चीज होगी उसको मूव करने में उतना ज्यादा पावर लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऑर्बिट में मूव करते रहता है और उसको मूव करवाना बहुत इजी होता है. सो देयरफॉर इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज मींस Q इन अ कंडक्टर एट अ गिवन टाइम. तो इस डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि I, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इज इक्वल्स टू Q अपॉन टाइम, दैट इज चार्ज एट अ गिवन टाइम. जहाँ पे I क्या है मेरा इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है मेरा चार्ज, एंड T इज द टाइम टेकन. सिंपल. सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन on the name of a famous scientist, that is Ampere, and it is denoted by capital A. So from here we can derive कि हम अगर डिराइव करना चाहेंगे कि व्हाट इज 1 एम्पेयर ऑफ करंट. सो 1 एम्पेयर ऑफ करंट क्या होगा? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा विद इन 1 सेकेंड, सो दैट विल बी नोन एज माई 1 एम्पेयर ऑफ करंट.
It may be sounding very easy to you, but remind it this is a question which has come in your CBSE board exam. Now, the instrument which is used to measure the electric current. हमको पता कैसे चलेगा कितना current flow कर रहा है? Okay, so we are having this instrument that is known as ammeter, and this ammeter is used for calculating the amount of current flowing in the circuit. Okay, so simply how it happens is, ये जो negative lines दिख रहे हैं वो क्या है, मेरे electrons हैं. Electrons हमारा negative terminal से flow करता है positive terminal तक. जब switch हम on कर रहे हैं, that means switch को हम close कर रहे हैं, circuit close हो रहा है तो electrons flow कर रहा है, circuit बंद है तो हमारा electrons flow नहीं कर रहा है. So ये जरूरी तो नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से बॉम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हम मतलब ये एनर्जी आती कहाँ से है? हमने ये बोला कि जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, पर वो पोटेंशियल हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं या फिर ये एनर्जी मिल कहाँ से रही है उसको. ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अभी भी हमारा डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट नहीं हुआ है. देखो, बेसिक एग्जांपल है, जैसे फ्लो ऑफ वाटर होता है. एक जब if we see this diagram here, we can see that the water is flowing from in waterfall, it flows from higher point to the lower point. क्योंकि जो हायर पॉइंट होता है ऊपर वाला, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो हमेशा चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी में आके स्टेबल हो जाए, ठीक है. तो सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो. वो हमेशा चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चले जाए. Okay, so learning in, for example, if I am taking this electron, ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. इन्फिनिटी से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी एक पॉइंट पे लाया जाता है. That means when I am doing some work to bring this electron from infinity to a given point, so I have to create a potential difference. मैं किसी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड नहीं कर सकती, बट मैं क्या कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकती हूँ. सो टू मूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, दैट इज इन्फिनिटी पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट, वी नीड टू हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. अगर वो दोनों पॉइंट्स के बीच का एनर्जी सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करेंगे ही नहीं. ओके, सो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? We clearly know that higher potential से lower potential हमारा electrons flow कर रहा है. अगर ये उल्टा होता, अगर right hand side में मेरा higher potential होता और left hand side में lower potential, तो flow of electrons just opposite होता. It would be from right to left. Okay. So to move a charge in a given electric field from one point to another point, we require some energy. Some work has to be done to move it up. In the last slide, we have dealt about पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लाने के लिए हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है. नाउ वी आर डीलिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस द पोटेंशियल व्हिच वी आर डीलिंग इन अस. ओके, सो व्हाट वी हैव टू सी इज, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है मेरे पास, अगर एक वायर है, आई एम ऑलरेडी हैविंग माय सेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मेरे को एक चार्ज को, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है. That means specifically I have 2 points. There is no concept of infinity here. Okay, so specifically एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, so उसके लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है. Okay, to move that charge from one point to another, we require some work to be done, and that is known as my electric potential. The work per unit charge required to move a charge from a reference point to a specific point is known as electric potential difference in a given electric field. The same can be given in the formula. V, that is the electric potential, is given as W by Q, that is work done to move a charge from one point to another point. Clear? Now, ये अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सर्किट में क्रिएट कौन करता है? So that is our battery or our cell. जब हम स्विच ऑन करते हैं स्विच बोर्ड से, that means हम स्विच बोर्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सेम इफ वी यूज इन अ सिंपल सर्किट, जब एक बैटरी लेते हैं उसको कनेक्ट करते हैं वायर से और एक बल्ब से, तो बैटरी क्या है हमारा यहाँ पे सोर्स है, दैट इज द सोर्स ऑफ अवर एनर्जी.
and source of energy is only responsible for creating a potential difference. So our source of energy in the circuit is the cell or the battery, which creates and maintains the potential difference, which in turn helps to move the electrons from one to the other point. So electric potential difference is given as V is equals to W upon Q. The SI unit for electric potential difference is volt, and similarly 1 volt will be equal to when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge. So this is our electric potential difference SI unit. Now next will be what will be the instrument used for measuring electric potential difference. It is a voltmeter. ओके जैसे हम एमीटर यूज कर रहे थे एक चार्ज को करंट को कैलकुलेट करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, सिमिलरली कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये बताता है हमारा वोल्टमीटर. Emitter is connected in series and voltmeter is connected in parallel. Right now I am just telling you about series and parallel. We will be dealing in the next module. Okay, so what we have learned so far, charge क्या होता है? Charge is Q and that is given by the formula N into E. Electric current is given by I and that is given by formula Q by T, that is charge flowing in a given time. Electric potential is work done to move a charge from one point to another point, so V equals to W upon Q. Now let's recap what we have learned so far. In this module, first topic was about electric charges, then electric current, then electric potential, then at last potential difference. I hope you would have understood the basic concept of this chapter. चार्ज क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैसे क्रिएट होता है, क्या सोर्स होता है हमारे लिए. In the next module, we will be going in deep in this chapter. Okay, I have a question for you that you may have observed, or whenever you will learn this chapter, you will come to know that current का flow higher potential से lower potential होता है. That means here current is flowing in clockwise direction. But करंट के फ्लो का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना. बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है. सेम सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. कैन यू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इट? प्लीज फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो व्हाई डज दिस हैपन. Hope this would have been an important session for you and informative also. Try learning more and more. Be curious more so that you have the question arises in your mind and you have that feeling in you to learn more. Thank you. Have a nice day.